Good morning, students. Today we are going to continue with the same chapter. I Dream a World. It's a poem by Langston Hughes. So, we already read about Langston Hughes and some difficult words from within the chapter. So, today we are going to do questions and answers and some exercises from your textbook. So, here, before giving you the explanation of textbook exercises, I am going to give you a definition of personification. It's a poetic device, or we can say it literary device. I have been already told you about some poetic devices in which I cover alliteration and metaphor. Now I am going to teach you about personification, and personification is a figure of speech. We can say it poetic device, literary device or figure of speech in which an idea or an animal is given human attributes. पर्सोनिफिकेशन वो होता है जिसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स और ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं वो हम लोग एक आइडिया को या फिर एक एनिमल को या एक नॉन लिविंग थिंग को हम दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. melancholy means उदास होना, और उदास कौन होता है? ह्यूमन बीइंग. ये एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है, बट यहाँ पे ये किसको दे दिया गया है? डार्कनेस को. सो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन, कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है? पर्सोनिफिकेशन. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. यहाँ पे क्या है? वीप जो है क्वालिटी है, एट्रीब्यूट है ह्यूमन बीइंग की, बट यहाँ पे किसको दे दी गई है? रेन को. सो टीयर्स भी जो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है वो भी यहाँ पे रेन को दे दी गई है. दैट्स वाई वी आर सेइंग कि यहाँ पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे यूज़ हुआ है. सो it's the definition of personification. Hope you understand it well. So now I am going to give you the answers of understanding the poem A part. On the basis of your understanding of the poem, complete the following summary. In the poet's dream world, no man will scorn others. जो पोइट का ड्रीम वर्ल्ड है वहाँ पे क्या कर रहा है? कोई इंसान दूसरे इंसान को स्कॉर्न नहीं करेगा. द अर्थ इज फुल, हियर इट इज, द अर्थ इज ब्लेस्ड बाय लव एंड पीस. So, and peace will prevail everywhere. There will be no difference between black or white. Everybody will be able to experience joy and happiness. Man will not be spiritually weakened by greed. Avarice will not make human life miserable. People will share the bounties, gifts of nature unequally. Misery will be banished. So here I am going to give you the answer of B part. Read the following extract from the poem and answer the questions that follow. This is the extract. Enjoy like a pearl, attend the needs of all mankind. What has joy been compared to? Joy has been compared to pearl. What is the significance of this comparison? इस comparison का क्या हमें importance क्या है? This comparison tells us that just like a pearl, कि पर्ल की तरह जो जॉय है कुड ऑल्सो शाइन फॉर एवर इन द लाइव्स ऑफ पीपल और ह्यूमन बींग्स. जैसे पर्ल, जो रियल पर्ल होता है फ्रॉम द सी, उसकी जो शाइन है वो कभी भी डिम नहीं होती, कभी भी उसकी शाइन जो है वो कम नहीं होती है. सो इसी की तरह जो है जॉय ह्यूमन बीइंग की लाइफ में फॉर एवर शाइन करना चाहिए. बट द पोइट फर्दर मेंशंस, लेकिन फिर पोइट ने क्या मेंशन किया है? अटेंड द नीड्स ऑफ ऑल मैनकाइंड. It is possible only when the needs of all mankind would be fulfilled. ये जो जॉय की बात कर रहे हैं कि वो फॉर एवर इंसान की लाइफ में जो है वो शाइन करती रहनी चाहिए जॉय, लेकिन वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? सिर्फ अगर जो मैनकाइंड की जो ह्यूमन बींग्स की जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल होती रहेंगी, तभी जो है जॉय जो है, खुशी जो है उसकी लाइफ में
शाइन करती रहेगी. So C part, personification is a literary device in which objects or qualities are represented as human beings. What qualities have been personified in the following expressions? Here is one more definition of personification which is given in your textbook. Personification is a literary device in which objects or qualities, non-living things, object or qualities are represented as a human beings. What qualities have been personified in the following expressions? Love will bless the earth. यहाँ पे दिया गया है कि जो personification है वो क्या होगा, एक लिटरेरी डिवाइस है इन विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ और क्वालिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड एज ह्यूमन बींग्स. जो ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं या क्वालिटीज़ हैं, उनको ह्यूमन बींग्स की तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा. सो इन दो सेंटेंसेस में जो है वो पर्सोनिफिकेशन, कौन से एक्सप्रेशन जो है वो पर्सोनिफाइड हुए हैं. लव विल ब्लेस द अर्थ. हियर लव एंड जो लव है वो पर्सोनीफाई हुआ है. एंड यहाँ पे जो है रेचेडनेस विल हैंग इट्स हेड. रेचेडनेस मीन्स मीजरी, सो वेरी पुअर. लव जो है वो ब्लेस कहाँ किसके थ्रू हुआ है, उसको पर्सोनीफाई किसने किया है, ब्लेस ने. क्योंकि ब्लेसिंग जो है वो एक ह्यूमन क्वालिटी है, ह्यूमंस का है. और हम लव जो है एक क्वालिटी, एक जो है आइडिया है या क्वालिटी है, फीलिंग है. रिचेडनेस विल हैंग इट्स हेड. हैंग कौन करता है, हैंग करते हैं ह्यूमन बीइंग. या फिर और जो रिचेडनेस है वो कैसे हैंग करेगा, तो ये एक ह्यूमन क्वालिटी है. और हेड जो है ये भी एक ह्यूमन क्वालिटी है. हेड जो है रिचेडनेस का हेड नहीं होता. सो यहाँ पे जो है पर्सोनीफाई किया गया है टू expressions bless and hang. So here HOTS, the poet has described some features of his dream world. Work in groups of 4 or 5 and make a list of the steps that need to be taken to translate the poet's dream into reality. यहाँ पे कहा गया है कि 4 और 5 जो पीपल हैं उनका ग्रुप बनाइए, स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाइए. बट आप लोग अब ऑनलाइन स्टडी चल रही है तो इस टाइम पे ग्रुप बनाना इज़ नॉट पॉसिबल. सो आई एम गोइंग टू explain you this question. The following are the steps that need to be taken to translate the poet's dream into world. हमें कौन से steps लेने चाहिए, कौन से ऐसे features हैं जो poet चाहता है कि हम लोग उसकी The poet has described some features of his dream world. Poet ने कुछ features describe किए हैं उसके dream world के. हमें ग्रुप में काम करके क्या पता करना है कि इन सब को पूरा करने, उसके dream world को बनाने के लिए हमें कौन कौन से steps जो हैं वो लेने पड़ेंगे जो कि उसके ड्रीम को रियलिटी में ले आएंगे. देयर शुड बी इक्वल राइट्स गिवन टू ऑल. सभी को इक्वल राइट देने पड़ेंगे. वी शुड लव ईच अदर. हमें किसी से भी हेट्रेड नहीं करनी है, हमें सबसे प्यार करना है. नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट एंड क्रीड. वी शुड प्रमोट पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड. हमें प्रमोट करना है पीस, हारमोनी एंड यूनिवर्सल भाईचारा. सो हेयर वैल्यूज़. ग्रीड एंड एवरिस आर टू ह्यूमन वाइसेस वी नीड टू शन. ग्रीड, लालच, एवरिस, लालच जो हैं वो हमें, हमारे जो लाइफ है उसके दो बड़ी ही बुरी चीज़ें हैं जिन्हें हमें छोड़ना चाहिए, शन करना चाहिए. डू यू अग्री? क्या आप इस चीज़ से अग्री हैं? अगर हैं, इफ़ येस, हाउ डू यू थिंक वी कैन इंश्योर दैट वी डू नॉट फॉल विक्टिम्स ऑफ सच वाइसेस. तो आपको क्या लगता है, अगर आप इससे एग्री करते हैं कि हमें ग्रीड एंड एवरेस्ट जो है वो शन करनी चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि आप इसके विक्टिम ना, इन बुराइयों के विक्टिम ना बने. येस, आई अग्री विद द फैक्ट दैट ग्रीड एंड एवरेस्ट आर टू नेगेटिव क्वालिटीज़. मैं अग्री करता हूँ कि ग्रीड एंड एवरेस्ट जो है वो टू नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं. वी नीड टू शन. हमें इनको छोड़ना पड़ेगा. द इनर वॉइस ऑलवेज गाइड्स अस इन द राइट डायरेक्शन. जो हमारी इनर वॉइस है, जो हमारी अंतर आत्मा है, वो हमें कभी भी गलत गाइड नहीं करती है. आवर हार्ट नोज दैट मनी इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ आवर मेंटल पीस. हमारे दिल को पता है कि मनी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ जीने के लिए, लाइवलीहुड के लिए, लेकिन वो कभी भी मनी इतना
इतना बड़ा नहीं हो जाना चाहिए, या उसकी जो है हमें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होनी चाहिए कि हम अपनी मेंटल पीस जो है वो स्टेक पे रख दें। वी शुड नॉट अर्न इट बाय रॉन्ग मीन्स, हमें जो है रॉन्ग मीन्स ऑनेस्टी से पैसा कमाना चाहिए, कभी भी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। अगर हम पैसे की तरफ गलत तरीके से भागेंगे तो हम अपनी